Okay, dear students, welcome to all of you. Today we are going to discuss about the half adder and full adder. As we know, in the digital logic circuit, adder is used for addition of the 2 bit. If there are the 2 bit like 0 and 1 and we want to add them, then for that purpose we use the adder. Basically these are two type, half adder and full adder. If we have only two input, like as shown here, it is the circuit of the half adder which contain only the two input A and B, and the output is in the form of the sum and carry. If there are three input, one input is the A, B, and third input is the C in, that is the carry, then output will be S sum and C out, that is the carry bit. Now the half adder circuit first we study. By using the half adder, we can do the simple addition, can be done with the help of the logic gates. Now see the block diagram of the half adder. Half adder contains the two input A and B. Sum is the output is the sum and another is the carry. Now if we add the 2 bit like 0 plus 0, now output will be 0. If we are adding the 2 bit 0 plus 1, then output will be equal to 1. If we use the 1 plus 0, then output will be equal to 1. If we are adding the 1 plus 1, then output will be equal to 0. Now what is the carry? Here carry is 1. If not carry, then we put it all in the 2-digit format. Then here this first row, that column is indicating the exclusive OR gate. ये हमारा X OR gate को indicate कर रहा है और that is indicating the AND gate. ये हमारा AND gate को indicate कर रहा है. इस तरह से वी कैन यूज द सम. यहाँ पर जो सम है दैट कैन बी अचीव बाय दिस एंड कैरी इज अचीव बाय दिस एंड गेट. तो इस तरह से अगर हम एक एक्सओर गेट को और एक एंड गेट को अगर हम यूज करें तो वी कैन मेक द सर्किट ऑफ द हाफ एडर. हम हाफ एडर का सर्किट जनरेट कर सकते हैं. As shown here, the truth table of the half adder truth table will be like this. Input are the A and B. If there are two input 0 0, then sum is 0 and carry is also 0. If 0 1, then 1 and 0. If 1 and 0 is the input, output is the 1 0. And if 1 1 is the input, output is the 0 1. तो here we can see that इस ट्रूथ टेबल में आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर that is work like a, that is the output of a sum is the output of a exclusive OR gate. ये हमारा आउटपुट एक्सक्लूसिव OR गेट का है. that is the output of the AND gate. तो इस तरह से हम हाफ एडर का that is the circuit. Here A and B are the two input. These two input can be apply with the help of the switch. अगर हम यहाँ पर एक स्विच लगा दें दो, तो इनकी हेल्प से we can apply the A and B.
दीज आर द टू इनपुट। तो इनकी हेल्प से हम अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर ए और बी की हेल्प से वी कैन अप्लाई द टू इनपुट। अगर हम इसको सपोज जीरो ओपन रखते हैं दोनों को, मीन्स जीरो और जीरो, इट मीन्स इट इज इंडिकेटिंग दैट बोथ इनपुट आर जीरो जीरो। अगर हम एक स्विच को क्लोज कर देते हैं तो दैट इज इंडिकेटिंग द वी आर अप्लाइंग एट द इनपुट, 1 0 is applying at the input. If we switch the second switch also close, then we are applying the 1 1 as the input. If so, in this manner we can apply the input with the help of the switches. Now these are available in the IC form. ये हमारा जो एक्सक्लूसिव और गेट है ये आईसी की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन द आईसी फॉर्म, ये भी हमारे पास आईसी की फॉर्म में अवेलेबल है। इनको हम यूज करके हाफ एडर को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ कम टू द फुल एडर। फुल एडर में 3 इनपुट हैं, जैसे कि हमारे पास लाइक 0 0 एंड 1 1 0 1 1 1 0। नाउ इफ वी आर एडिंग दीज बिट, देन व्हाट हैपन, हमारे पास जो कैरी जनरेट हो रहा है उसको हम अगले बिट में ले जाएंगे। देर आर द 2 बिट ओनली, सपोज वी आर कंसीडरिंग द 2 बिट, एंड इफ द कैरी इज जनरेटेड 1 1 0 एंड 1 कैरी इज ऑल्सो टेकन हियर, तो इस तरह से ये हमारे पास 3 बिट इनपुट में हो जाते हैं जिनको कि हम ऐड करना चाहते हैं। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है ए बी एंड कैरी इन, दैट इज द इनपुट। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो वी आर गेटिंग द सम एंड कैरी आउट, ये हमको आउटपुट में मिल रहा है। तो यहाँ पर दैट इज द ट्रुथ टेबल ऑफ द फुल एडर। अगर ए बी और सी इन हम इनपुट में देते हैं, वी आर गेटिंग द सी आउट एज द आउटपुट। सी आउट में जो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है, वी कैन वेरीफाई with the, suppose we are taking this and we want to verify it whether our output is okay or no। तो हमने यहाँ पर a b 0 0 और c in हमने 1 लिया। नाउ दैट इज द फुल एडर सर्किट, ये हमारा फुल एडर का सर्किट है। तो वी आर कंसीडरिंग सपोज a इक्वल टू, पहला इनपुट हमने 0 लिया, दूसरा इनपुट b इक्वल टू ऑल्सो 0 एंड सी इन जो तीसरा इनपुट है that we are taking the 1। now what will be the our output, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, that we want to check। तो हमारा जो आउटपुट यहाँ पर हमको मिल रहा है, सी आउट इज 0 एंड एस इज 1, वी आर गेटिंग सम एस इज इक्वल टू 1 एंड सी आउट इज इक्वल टू दैट इज अवर आउटपुट और दैट इज द इनपुट। ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमने यहाँ पर 0 0 दिया, हियर वी आर यूजिंग द 2 एक्सक्लूसिव और गेट। फर्स्ट एक्सक्लूसिव और गेट का जो हमारा आउटपुट है दैट गोज टू द इनपुट ऑफ द सेकंड एक्सक्लूसिव और गेट एंड आफ्टर दैट वी आर गेटिंग द सम हियर। इसी तरह से जो तीसरा इनपुट है वो हमारा 1 हो गया, तो यहाँ पर हमने 1 दिया और यही 1 हमारा यहाँ एंड गेट में भी जा रहा है और एक्सक्लूसिव और गेट का आउटपुट है वो हमारा इस एक्सक्लूसिव और गेट में, एंड गेट में भी जा रहा है। तो इस तरह से इफ 0 0 सिमिलर हैं तो देन वी विल गेट द 1 हियर, बिकॉज एक्सक्लूसिव और गेट का आउटपुट है वो हमारा कैसे निकालते हैं, दैट इज द y इक्वल टू a b बार प्लस a बार b। if the a is equal to 0 then b is equal to 1, if a bar is equal to 1 then b is equal to 0।
then our output will be 0 that we have written here. यहाँ पर हमारा 1 आ रहा है, जब हम 0 1 देंगे तो we will get the 1 here with this logic. यहाँ पर एंड गेट है, 0 1 देंगे we will get the 0. यहाँ पर दोनों हमारा 0 0 दे रहे हैं, these are coming here, तो यहाँ भी 0 है और यहाँ पर भी हम 0 दे रहे हैं, तो we are getting the 0 0 0 we are getting the 0. तो यहाँ पर हमारा सम तो 1 आ गया, कैरी 0 आ गया, that we have verified. इसी तरह से बाकी कंडीशंस को भी we can verify that these are true on our adder. ये हमारे एडर पर हम इनको वेरीफाई कर सकते हैं. तो इस तरह से we have seen that adder is the important building block for addition of the 2-bit with carry or without carry. Now come to the K-map. जो हमारा K-map है किरनोग में, that is used for the purpose of the solution simplify the circuit. So that is a digital circuit and we need to find out the minimum variables. That can be done in the two way. One is the sum of the product form and product of the sum form. Here we are studying the sum of the product form. Suppose we will take the one example. These are the steps of solving K-map. Here we are taking the example like 3 variables. We have the 3 variables and we have given z is equal to summation a, b and c. These are the 3 variables and 1, 3, 6 and 7. These are the 4 out. Now the 3 variables के लिए जो हम किरनोग में बनाएंगे that will be like this. अगर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं तो देयर विल बी 2 की पावर 3 बराबर 8 पार्टीशन हमारे पास होंगे. तो हम यहाँ पर इस तरह से करके a यहाँ लिख देते हैं और 2 वेरिएबल हमने b और c यहाँ पर लिख दिया. वी हैव डन 8 पार्ट ऑफ इट. इसके हमने 8 पार्ट कर लिए. दैट इज द 0 0 फर्स्ट पार्ट, 0 1 1 1 and 1 0. These are our parts and 0 and 1 ये हमने यहाँ पर a की वैल्यू ले ली. अब पहला हमारा 0 1 3 और 2 इनकी नंबरिंग हम करते हैं इस तरह से. यहाँ पर 3 होगा, यहाँ 2 होगा हमारा. देन 4 5 7 और 6 ये नंबरिंग हमको याद रखनी पड़ेगी. अब हमको पुट करना है, सपोज वी वांट टू पुट 1. तो 1 को हम किस ब्लॉक में, इसमें 1 नंबर है इसका, इसमें उसकी जगह 1 पुट कर देंगे. इसमें हमें 1 और 0 की फॉर्म में ही पुट करना है. 3 जहां पर आ रहा है वहां भी 1 पुट कर देंगे. इसी तरह से जहां 6 और 7 आ रहा है वहां पर भी हम 1 1 पुट कर देंगे. इन नंबर को हमको यूज नहीं लेना, बाकी जगह पर हम सारी जगह पर 0 पुट कर देंगे और सारी जगह पर हमारे पास 0 पुट होगा. तो हमने यहाँ पर भी 0 पुट कर दिया, यहाँ भी 0 पुट कर दिया, यहाँ पर भी 0 पुट कर दिया, ये भी 0 पुट कर दिया. तो एक तो हमारा ये ब्लॉक बन गया. अब हम 1 1 के कॉम्बिनेशन बनाते हैं. तो एक हमारा पास ये बन गया, एक हमारे पास ये बन गया. अगर 4 का बन सकता है तो हम 4 का भी बनाएंगे, पर अगर यहाँ पर 4 का पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 का बनेंगे तो 0 भी आ जाएगा. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. नाउ वी विल सॉल्व इट. इसको सॉल्व करने के लिए वी विल सी दैट द रेड ग्रुप वी गेट प्रोडक्ट टर्म. जो हमारा रेड ग्रुप है दैट इज द शोन हियर. इसमें आप देखेंगे कि ये इस रो में आ रहा है. यहाँ a 0 है तो हम यहाँ a को 0 होगा तो a डैश या a बार लिख देंगे. और यहाँ पर हम bc है तो 0 से 1 जो चेंज नहीं हो रहा, c चेंज नहीं हो रहा तो ac. तो ये हमारा इसका शॉर्ट टर्म हुआ.
इसी तरह से because we can write it, that is the a bar c. अब हमें जो नीचे वाला हमारा ब्लॉक है दैट इज द 1, तो 1 को हम क्या लिखेंगे, दैट विल बी द प्लस, दैट ए की जगह 1 आया तो ए लिख देंगे यहां पर हम, और यहां से हम चेंज हो रहे हैं तो यहां हमने देखा इससे 1 1 1 0, तो 1 हमारा कॉमन है तो यहां पर हम लिख देंगे दैट इज द बी। तो इस तरह से दैट इज द, ये हमारा इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया, जेड इजकल टू ए बार सी प्लस ए बी, दैट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस सर्किट। इसी तरह से हम 4 वेरिएबल्स अगर हमारे पास होंगे तो इन डाटा को पुट करके हमें, जैसे पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, these are the 4 variables, then we put the pq here, rs here। इसको हम यहाँ पर ये 4 का ग्रुप भी बना सकते हैं, 4 के ग्रुप्स बना लेंगे, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वी सी दैट रेड ग्रुप, दैट इज द रेड ग्रुप हमारा है। 4 कॉर्नर, ये आप देखेंगे कि लगातार हमारे पास 4 नहीं है, लेकिन अगर 4 कॉर्नर पर 1 आ रहे हैं तो भी हम इसका एक ग्रुप बना सकते हैं। तो ये वाला हमारा एक ग्रुप बन गया और एक हमारा ये हो गया। तो यहाँ पर हमारा व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इज द क्यू, तो क्यू हमने ले लिया, देखिए 0 1 से 1 1, तो यहाँ पर हमारा क्यू इज द कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पर हम जब मूव करते हैं तो 0 1 और 1 1, तो यहाँ पर एस हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो वी राइट इट क्यू एस, इसको हमने क्यू एस लिख दिया। एक टर्म तो हमारा ये आ गया इस ग्रुप को सॉल्व करके। दूसरा टर्म 0 0 1 0, तो दैट इज द 0 0 इज द कांस्टेंट, और यहां पर हम दूसरा ग्रुप देखेंगे इस तरह से, अगर हमारा हम इसको करते हैं तो दैट विल बी द क्यू डैश। यहां पर हम इसको इस तरह से करते हैं कि यहां पर हमारा यहां पर है और यहां पर है, तो दैट इज द 0 0, ये वाला पार्ट 0 0 है, दैट इज द 1 0, 0 0 हमारा कांस्टेंट है, दैट इज द क्यू डैश। तो क्यू डैश, और यहां पर हमारा इस तरह से अगर हम देखते हैं तो दैट इज द 0 0 और 1 0, मीन्स एस वाला पार्ट कांस्टेंट है, दैट इज द क्यू एस, दैट इज द, वी कैन राइट इट क्यू बार एस बार। तो ये हमारा इसका एक तरह से, इसको हमने सॉल्व करके वी कैन राइट इन दिस फॉर्म। तो समिंग दीज प्रोडक्ट टर्म वी गेट फाइनल एक्सप्रेशन, इसको हम सॉल्व करके वी विल गेट द दिस फाइनल एक्सप्रेशन, ये हमको मिल जाएगा। तो दैट इज द बेसिक टेक्निक ऑफ द K-map। Okay, thank you very much.